Are you struggling to balance subjects, feeling burnt out, and don't know how to start your CA preparations? Then don't worry. I have a tips and tricks to share with you today so that you can follow those and feel consistent, stay focused, and exam ready. So just let's start this video. Hey guys, welcome back to my channel. This is me, CA Shalini Sharma, and this is my channel, CA Shalini Talks. So I started this channel like a week ago, and this is my second video. अगर आपने मेरी first video नहीं देखी है, so please go and watch my first video and get to know that why I started this channel. So today I'm here with a new video, and today I'm going to share some tips and tricks with all the CA students out there, so that you can follow those tips and tricks and start planning for the CA exams. I know CA exams are not just about sitting long hours and studying. CA exams require smart planning, discipline, and mental balance. And I'm going to share with you the strategy, whether you are aiming for the CA finals or CA inters, and this strategy is going to help you to face your exams without fear and stress. So here is my golden rule: one theory subject, one practical subjects daily. Trust me guys, brain loves variety. So studying one subject whole day will make you feel dull or boring, and sometimes you feel demotivated also. So keeping the one theory subject or one practical subject एक साथ, so that it will help you to be a sharp minded, so you will not feel bored, or sometimes it helps you make things or manage the things easily. एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? सो एक दिन में दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, और आपका माइंड भी थोड़ा बैलेंस बना रहेगा. यू विल नॉट लाइक ओके एक दिन में एक ही पढ़े जा रहे हो. बिकॉज जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती थी. मैं पूरा दिन, अगर मुझे पता है सपोज इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन थ्योरी सब्जेक्ट कि मुझे आज सारा दिन सिर्फ लो पढ़नी है, मैं नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ थ्योरी पढ़ के, और मैं इतनी डीमोटिवेटेड हो जाती थी कभी कभी कि क्या यार, मेरे से नहीं हो रहा. समटाइम्स आई फेल्ट लाइक दैट. So that's why I started this strategy of taking the one practical subject or one theory subject, and it helped me a lot. I can say a lot. And I started to feel motivated, and my mind started feeling fresh when I started the new subjects in a day. So really I'm going to tell you that this strategy will really help you अगर आप एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे. ठीक है, सो सबसे पहले मैं जो है एक 2 मंथ्स का एक रिवीजन प्रॉपर बनाऊंगी आपके लिए कि आपको कैसे बैलेंस करने हैं सब्जेक्ट्स. ये 2 मंथ्स की जो रिवीजन मैं बताऊंगी फॉर द CA स्टूडेंट्स, लाइक CA फाइनल और CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए, बट आई एम जस्ट टेकिंग टुडे द सब्जेक्ट्स ऑफ CA इंटर, जो सो दैट आई कैन गिव यू द प्लानिंग कि ये कैसे करना है. So I'm taking the CA inter subjects for you for the planning purpose. CA final students also can see and make your subjects accordingly, or group your subjects accordingly. So मैं ये assume कर रही हूँ कि इससे पहले आपने जो सारी रिवीजन, अपना सारा सिलेबस खत्म कर चुके हो. So now you are here with the final revision period. सिर्फ 2 महीने रह गए हैं एग्जाम्स के लिए, और you don't know how to do this. ठीक है, तो नाउ आई एम हियर फॉर यू फॉर द 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी, one practical subject and one theory subjects in a day. So let's just start how you can do that. So guys, suppose मैं कह रही हूँ आपको 2 महीने हैं. 2 महीने में कितने डेज होते हैं? 60 डेज. सो आई डिवाइड द थिंग्स 45 डेज and 15 डेज. 45 days for the first revision, 15 days for the second revision for the 6 subjects. I'll just show you how you can do it. So I'm going to divide you the things in the 3 phase. First phase is going to be advanced accounting and taxation. Second phase is going to be corporate law and cost accounting. Third phase is going to be audit and FM. So 1 to 15 days phase 1, 16 to 30 days phase 2, and 31 to 45 days phase 3. So ये तीनों सब्जेक्ट्स मैंने इतने फेज में डिवाइड कर लिए हैं. 15-15 दिन मैंने तीनों लाइक 2-2 सब्जेक्ट्स को दे दिए हैं. लाइक 6 सब्जेक्ट्स आपको 45 डेज में आपकी रिवीजन कैसे होगी. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. सो 15 डेज फॉर एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशंस. आई नो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CA फाइनल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CA इंटर ऑल्सो, जो पहली बार टैक्सेशन पढ़ते हैं इतना सारा, तो वो बहुत वास्ट हो जाता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो आई एम टेकिंग, सो मेरा हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी रहती है शुरू से, दैट सुबह जब आप उठते हो तो आपका जो माइंड है वो इतना फ्रेश होता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ें याद कर लेते हो. ठीक है, तो मैं हमेशा जो सुबह होती थी, तो मैं हमेशा रखती थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए. ऑलवेज थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग.
इन द मॉर्निंग मतलब 4 बजे उठ के नहीं बैठ जाना है. आई एम रियली नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. मैं 4 बजे उठ के कभी नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं ना पढ़ी हूँ. मैं हमेशा अपना डे स्टार्ट करती हूँ लाइक अराउंड 7. मैं 7 बजे के अराउंड अपना दिन शुरू करती हूँ. 7 to 10 you can take one subjects like taxation, because taxation I'm talking about here. सबसे पहले मैं एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन की बात कर रही हूँ, फेज 1. ठीक है, तो टैक्सेशन मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज टैक्सेशन आई नो आप बोलोगे ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया. नो, ये कभी गलती मत करना दैट टैक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. नॉट एट ऑल. टैक्स इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, द फ्यूजन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, उसकी प्रोविजंस नहीं पढ़ोगे अच्छे से, तो आप टैक्स नहीं कर सकते हो. तो मेरे लिए हमेशा जो टैक्स था वो हमेशा मेरे लिए एक ऐसा होता था कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है. तो मैं उसको हमेशा उस तरह याद करती थी, मतलब समझती थी चीज़ों को, सो दैट मैं जो प्रोविजंस पढ़ रही हूँ वो मैं टैक्सेशन में लगा सकूँ. गाइस लेट्स स्टार्ट कि मैं अपना डे किस तरह डिवाइड करूँगी इन द थ्योरी सब्जेक्ट एंड इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ओके, सो मैंने अपना दिन डिवाइड किया है 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, बिकॉज मैं सुबह उठ के पढ़ने वाले लोगों में से नहीं हूँ. तो अगर जो आप सुबह उठ के पढ़ने वाले लोगों में से हो तो आप अपना स्ट्रेटेजी उस तरह बना सकते हो. बट आई एम जस्ट शेयरिंग द टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट यू, द टाइमिंग्स. ठीक है, सबसे पहले 7 से 9 बजे हम उठेंगे. ठीक है, 7 बजे हम उठेंगे, सॉरी. तो 7 से 9 हम पढ़ेंगे टैक्सेशन. टैक्सेशन आई एम सेइंग ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फेजेस ऑफ द स्टडी जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. लाइक इन फर्स्ट फेज देयर वाज टैक्सेशन, इन द सेकंड फेज कॉर्पोरेट लॉ, इन द थर्ड फेज ऑडिट. तो इन तीनों फेजेस को आप इन टाइमिंग्स में डिवाइड करोगे फॉर द मॉर्निंग फेज. मॉर्निंग फेज इज फॉर थ्योरी एंड सेकंड हाफ जो है आपका किस में होगा, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द डे विद द 7 AM. सो 7 AM फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट, 7 to 9 यू आर गोइंग टू डू थ्योरी सब्जेक्ट्स. कितने हो गए, 7 8 9, 2 घंटे आपने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिया. अब 9 से 10 यू हैव टू टेक ब्रेक, नहाना है, थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है. ठीक है, टेक 1 hour ब्रेक. उसमें आपने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खाना खाया. ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट द डे अगेन. फिर आप पढ़ोगे 10 से 2 बजे तक. 10 से 2 बजे तक आप पढ़ोगे दोबारा से. कितने हो गए, 4 घंटे. ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट. सो 2 घंटे सुबह, 4 घंटे यहाँ पे कितना हो गया, 6 घंटे आपके हो गए. और अभी जो है शाम भी नहीं हुई है, जब सिर्फ 2 बजे हैं. ठीक है, और आप 6 घंटे आप पढ़ लिए हुए और आपका एक सब्जेक्ट की रिवीजन मतलब हो गई दिन में. ठीक है, नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक बिटवीन 2 to 4. 2 से 4 आप ब्रेक लोगे, बिकॉज 2 से 4 में पढ़ना इम्पॉसिबल होता है. खाना खाया, नींद आई, कितना कुछ होता है, मैं तो नहीं पढ़ पाती थी. ठीक है, सो 2 से 4 टेक योर टाइम एंड टेक दैट टाइम फॉर यू. खाना खाया, 1 घंटा लगा के थोड़ा टीवी टूवी देखा, 1 घंटे की नैप ले ली, सो दैट आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे. जो आपने पढ़ा है आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. ठीक है, 2 से 4 की अपनी ब्रेक खत्म हो गई. लेट्स जस्ट स्टार्ट द डे अगेन. सेकेंड हाफ इट इज 4 to 7, 4 5 6 7 कितने हो गए, 3 घंटे हो गए. 3 घंटे आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फेज में हमारा आएगा एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड फेज में हमारा आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड फेज में हमारा आएगा FM. ठीक है, तो ये मैं डिवाइड कर रही हूँ 15 दिन. ठीक है, ये 15 दिनों में आप ये सब चीज़ें करोगे. ठीक है, और फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में आप करोगे. ठीक है, तो 4 से 7 आप क्या पढ़ोगे, टैक्सेशन, आई एम सॉरी एडवांस अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. फिर 7 से 9 आप लोगे ब्रेक. 3 घंटे आप पढ़ लिए हो. ठीक है, अब आपको बाहर जाना है, आपके दोस्तों से मिलना है, आपको टीवी देखना है. ठीक है, जो मर्जी करना है, आप 7 से 9 ब्रेक ले सकते हो. बिकॉज 7 से 9 समटाइम्स आपका नहीं मन करता पढ़ने का, आप टीवी देखना चाहते हो टीवी देख सकते हो, कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज देखना चाहते हो सीरीज देख सकते हो. ठीक है, सोशल मीडिया मैं आपको अवॉइड करूँगी, बोलूँ आई एम रियली सॉरी. मैं सोशल मीडिया रियली आपको बोलूँगी अवॉइड करने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा अपना सोशल मीडिया बंद कर देती थी फॉर द 2 months. सोशल मीडिया मीनिंग नेट, क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह. ठीक है, यूट्यूब में नहीं करती थी बिकॉज मुझे पढ़ना भी होता था समटाइम्स उससे. ठीक है, यूट्यूब और ठीक है, तो आप सब चीज़ें नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हो 2 घंटे के लिए. सो 4 से 7 आपका क्या होगा, आप 4 से 7 आप क्या करोगे, 4 से 7 आप ब्रेक लोगे. फिर आप बैठ जाओगे. 4 से 7 आप पढ़ोगे, सॉरी मैं पता नहीं बीच में थोड़ा मिक्सअप हो रहा है. 4 से 7 आप पढ़ोगे, फिर 7 से 9 आप ब्रेक लोगे. फिर 9 से 10 जो है आप फिर 9 से 12 आप फिर पढ़ोगे, 9 10 11 12. तो 6 घंटे आप सुबह पढ़ लिए, 6 घंटे आप दोबारा पढ़ लिए. लेट्स जस्ट
डू इट अगेन। 7 से 9 आप सुबह पढ़ोगे थ्योरी 3 घंटे, 9 से 10 आपने लिया ब्रेक, फिर 10 से 2 आप पढ़ोगे थ्योरी, फिर आपके हो गए 3-4 घंटे, तो कितना हो गया 6 घंटे में एक फेज खत्म। ठीक है, लिया फिर हमने 2 से 4 का ब्रेक। ठीक है, ये हमने ब्रेक लिया, उसके बाद जिसमें हमें सो गए हैं थोड़ा सा, फिर हमने स्टार्ट किया सेकंड फेज। 4 से 7 हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट कुड बी योर कॉस्ट अकाउंटिंग, योर एडवांस अकाउंटिंग और योर FM, और CA फाइनल स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं जो उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। आई नो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर लाइक थोड़ा सा आप देख सकते हो किस तरह आप कर सकते हो जैसे आपको लगे, बिकॉज मैं वो स्ट्रेटजी अलग से बना सकती हूँ आपके लिए CA फाइनल्स के लिए, बिकॉज उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हो, तो इसलिए मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अभी उसके बाद 7 से 9 आपका ब्रेक हो गया, उसके बाद 9 से 12 फिर आपका फिर से जो है प्रैक्टिकल पढ़ोगे, तो 6 घंटे सुबह दे दिए, 6 घंटे शाम को दे दी, 12 घंटे की पढ़ाई हो गई। ठीक है, वेरी गुड, वी आर डन विद आर 45 डेज लाइक दिस। ऐसे करने से जो है बहुत हेल्प मिलती है, मेरे को तो बहुत हेल्प मिली, बिकॉज एक जो है आपको ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है, खत्म करना है, 3 दिन में पढ़ना है एक सब्जेक्ट। आप आराम से दो सब्जेक्ट्स को एक दिन में कंप्लीट करके 45 डेज में आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो सकती है। डोंट वरी, मैं आप बोल रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, इट्स ओके। मैं जो है एक PDF बना के नीचे अपना लिंक शेयर कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड फॉलो दैट, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लाइक 15 दिन बचे हैं। तो अब क्या करोगे, अब इसको भी आप 3 फेजेज में डिवाइड कर लोगे, 5 डेज 5 डेज एंड 5 डेज। ठीक है, सेम फेज 1 फेज 2 फेज 3 सेम सब्जेक्ट्स को रख के 5-5 दिन सभी के लिए, और सेम टाइमिंग्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, बट हाँ ब्रेक थोड़ी कम कर सकते हो, लाइक ब्रेक्स हमने ली थी 9 से 10 सुबह वाली ब्रेक, ठीक है, 2 से 4 बजे वाली ब्रेक 2 से 3 कर दीजिए कम। ठीक है, फिर जो रात को जो आपने या फिर 3 से 4 कर लीजिए, सो दैट आप 10 से 3 बजे तक पढ़ें, फिर 3 से 4 आप ब्रेक लोगे, फिर 4 बजे जो है आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 4 से 7, 4 से उसको 8 कर लो। ठीक है, ब्रेक सिर्फ 8 से 9 बजे तक ही लोगे। अब आपका बाहर जाना बंद है। ठीक है, घर पे जो ब्रेक करनी है करो, खाना खुना खा के 8 से 9, देन पढ़ने बैठ जाओ 9 से 12, 9 से 12 एक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोओगे 12 बजे, सुबह उठोगे 7 बजे, तो आपके पास 7-8 घंटे हैं सोने के लिए, यू हैव इनफ टाइम टू स्लीप। और पढ़ाई में 7-8 घंटे सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, इस तरह जो है मैंने आपकी जो है 2 मंथ्स की रिवीजन, आपकी फर्स्ट रिवीजन 45 डेज में, सेकंड रिवीजन 15 डेज में, इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हो विद द माई गोल्डन रूल, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरी सब्जेक्ट्स इन अ डे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो गाइज, इस तरह आपकी 2 रिवीजन होगी। तो लाइक पेपर वाले दिन आपको कैसे रिवीजन करनी है वो मैं वीडियो में अभी नहीं बता सकती हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ, वो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बाद में बना दूंगी, बट दिस टाइम मैं सिर्फ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो मेरा एक रूल था 1 प्रैक्टिकल 1 सब्जेक्ट का। मेनली आपने जो टाइमिंग्स है, टाइम टेबल जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू अगर आप जो CA फाइनल स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप देख रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फेज 1 फेज 2 फेज 3 को जो भी तरह से आप चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगे, बट द रूल इज़ 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी सब्जेक्ट को एक कॉम्बिनेशन में रखना है। दैट्स व्हाट माय मेन फोकस हियर इज। ठीक है, तो उसके बाद जो मेन टेक अवेज हैं इस वीडियो के, दैट यू कैन गेट टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। ठीक है, यू कैन गेट इनफ ब्रेक्स, यू कैन गेट योर ओन लाइक टाइम, सो दैट आप रिफ्रेश हो सको, आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, विच आई फॉलोड। आई नो 12 घंटे दिन में पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ये जो 12 घंटों को आप 14-15 घंटे कर सकते हो, जो आपके 15 दिन रह जाएंगे, और एग्जाम वाले दिन तो 24 घंटे पढ़ना पड़ता है कभी कभी तो। yes, that is there. So guys, it was the video was all about, and I know if you find this video हेल्पफुल, और आपको लगा हो कि ये हेल्पफुल है और आपको आप अपना सकते हो इस वीडियो को। आई नो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। सम पीपल आर वेरी मॉर्निंग पर्सन, जिसको 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो यू कैन मेक दोज थिंग्स इन दैट मैनर। तो दिस वॉज माई स्टाइल ऑफ स्टडिंग, जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता था, जिनको रात को भी जागना पसंद है, और जिनको सुबह उठना पसंद नहीं है ज़्यादा जल्दी, और जो सुबह भी उठ के पढ़ सकते हैं और रात को जल्दी सो सकते हैं। ठीक है, वो उनके लिए भी वीडियो है। सो यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट, बट आई एम एडिंग द 1 PDF इन द लिंक, सो दैट आप वो सब फॉलो करो और अब वो सब आपको ईजी स्ट्रेटेजी लगे।
this thing really helped me a lot. Your mind, again I'm telling you, mind loves variety. One subject in a day, meaning you're feeling boring and boring. Taking 2 subjects in a day, एक दिन में 2 revisions, और आपका माइंड थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा. एक चीज़ को पूरा दिन पढ़ के आप बोर भी हो जाते हो. सो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी. ओके गाइज, सो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाली हूँ. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ let me know in the comment section, like my video and subscribe my channel so that I will come with you with more videos about the CA strategies and tips. So that's it guys. I hope सब अच्छे होंगे और सब अच्छे रहें अपने घर में. Love to all the CA students. Bye.